हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सहज स्टडीज़। ਇਹ ਚੈਨਲ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਯੋਗ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਰੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰ। ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਥੀਓ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ 1 ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੈਕਿੰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਤੇ L2 ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਦੂਸਰਾ ਹੈ यानी 6 ਤੋਂ 8 ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੈਕਿੰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਸਾਥੀਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਸਾਥੀਓ ਨਾਮ ਤੇ ਪੜਨਾਮ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਸਾਥੀਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਗਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ कि सहज स्टडी यूट्यूब चैनल के उपर आपको रीट की तैयारी के लिए फुल सिलेबस अवेलेबल है। तुसी चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाके पंजाबी सिक्ख्या शास्त्र जो कि पैडोगोजी तो संबंधित है वो तुसी देख सकते हो। टीचिंग मैथड के जोड़े वीडियोज़ ने वो भी अवेलेबल है चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। इस दे नाल व्याकरण का कंप्लीट सिलेबस इस चैनल के उपर उपलब्ध है। वो भी तुसी देख के अपने सिलेबस ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੀਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਗਿਣਤੀ, ਮਿਣਤੀ, ਰੰਗ, ਗੁਣ, ਔਗਣ, ਅਵਸਥਾ ਆਦਿ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਸਾਥੀਓ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ, ਮਿਣਤੀ, ਰੰਗ, ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। यानी ऐसा कोई भी शब्द जिस तो उसकी कोई विशेषता का पता चले वो सारे शब्द होंगे ने जोड़े वो विशेषण शब्द अखवाते हैं। सानू विशेषण के बारे पूरा टॉपिक अगर समझना हो तो आप सब के लिए चैनल की प्ले लिस्ट के अंदर आपको मिलेगा। ग्रामर तो ग्रामर के अंदर विशेषण मिल जाएगा, उत्थे जाके तुसी विशेषण समझ सकते हो। इत्थे आपां विशेषण का निचोड़ देखना है। फिर उस तो बाद प्रश्न नंबर अपने को 43 है विशेषण किन्ने प्रकार के होंगे ने। तो साथियों विशेषण ने जोड़े वो 5 प्रकार के होंगे ने। अक्सर एग्जाम के अंदर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। विशेषण के किहड़े-किहड़े प्रकार हैं तो हुण आपां उन्हां प्रकारां नूं देखांगे साथियों। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, निश्चयवाचक विशेषण ते पंजवां जो अपने कोल आ जांदा है वो आ जांदा है पड़नावी विशेषण। ये 5 विशेषण के प्रकार ने। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਲੇਰ ਮੁੰਡਾ। ਇੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਲੇਰ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਲੇਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਾਥੀਓ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ यानी लस्सी की विशेषता की है कि वह खट्टी है। तत्ता दुध यानी दुध की की खासियत है कि वह तत्ता है। तीजी किताब यानी किताब की विशेषता है कि वह तीजी है।
ठंडा पानी यानी पानी की की खासियत है, वो ठंडा है। सोहना फुल यानी फुल की की खासियत है, वो सोहना है। तो सोहना शब्द है जोड़ा विशेषण हो गया साडा, ते जोड़ा नाम है यानी फुल है उस तो पहले सोहना आ गया, यानी सोहना शब्द है जोड़ा नाम की विशेषता विशेषण के रूप के अंदर आ रहा है। तो इस तरीके नाल असीं होर भी शब्द देख सकते हैं, जिवें कि भारी पंड, ठीक है, दलेर, खट्टी, तत्ता, तीजी, ठंडा, सोहना, भारी, ये सारे शब्द की ने साथियों, ये विशेषण ने। अगर असी इस प्रकार के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं तो एग्जाम के अंदर ऐसे तरीके के प्रश्न पूछे जाते नहीं। वाक दे के उसके अंदर विशेषण पूछने के लिए वो कह सकता है आपनू, या फिर विशेषण का प्रकार भी पूछ सकता है। जिवें आप एक इत्थे वाक देखांगे, सुरिंदर दा चिट्टा दुपट्टा, सुरिंदर दा चिट्टा दुपट्टा है। तो साथियों इत्थे जिहड़ा दुपट्टा है जिहड़ा शब्द, तो वो विशेष दुपट्टे की जिहड़ी विशेषता की आई है साथियों, वो चिट्टे दे लई आई है। तो दुपट्टे की विशेषता है, चिट्टा है। तो इस तरीके नाल ये चिट्टा है जिहड़ा वो विशेषण हो जाएगा। तो इस तरीके नाल असीं अगर इस टॉपिक नूं देखांगे तो ये साडा टॉपिक हल हो सकता है, तो एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाला हर प्रश्न असीं हल कर सकते हैं। फिर इत्थे एक गल होर आ गई कि विशेषण के प्रकार। तो साथियों 5 प्रकार ने, ये गल याद रखने वाली है, तो याद सानू इसके प्रकारों के नाम भी होने चाहिए ने। जिवें कि गुणवाचक विशेषण तुसीं दूसरा देख रहे हो स्क्रीन के उपर, गिनतीवाचक विशेषण तीसरा देख रहे हो, मिहनतीवाचक, निश्चयवाचक, परिणामीवाचक। वैसे तो इन्हों रट्टा लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट इन्हों रट्टा लगाते होणगे, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है साथियों। गिणती शब्द के अंदर ही वो नाम छुपया हुआ है, यानी गिणती का जोड़ा अंदाजा सानू जोड़े विशेषण कराते हैं उन्होंने गिणतीवाचक ने। मिणती जो मिणन के लिए वरते जाते हैं, गिणती ते मिणती के अंदर फर्क है। मिणती मिणना हुंदा है, गिणती गिणना हुंदा है। निश्चय यानी यकीनी। परिणामी विशेषण यानी ऐसे शब्द होंदे ने जिहड़े परिणाम तो हुंदे ही हुंदे ने पर वो विशेषता प्रगट करते हैं, उन्होंने आप परिणामी विशेषण आखते हैं। फिर इन्हों का विस्तृत अध्ययन भी इत्थे अवेलेबल है साथियों। तो तुसीं चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाके विशेषण वाले टॉपिक नूं भी हल कर सकते हो। मैं तो यही सुझाव देवांगा कि उस टॉपिक नूं जरूर देखना तो इस पॉइंट नूं क्लीयर करना, क्योंकि एग्जाम के अंदर जेकर इस अंदर कोई क्वेश्चन आता है तो तुहाडा ये क्वेश्चन सही हो सके, क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला एक एक प्रश्न एक एक पॉइंट तो अंदर आएगा, तो साढ़े को 30 प्रश्न आराम नाल हो जाएंगे। तो लैंगुएज के तौर पर पंजाबी 30 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। फिर इस तो बाद साथियों आप प्रश्न अगला देखांगे, ये परिणाम सी सारा। तो जिहड़े मेरे साथियों नूं परिणाम के विस्तृत अध्ययन अगर इसनूं समझना होवे तो जिहड़ा पंजाबी व्याकरण इस चैनल के उपर अवेलेबल है, वो वीडियो देख सकते हो तुसीं। आपां इसके अंदर परिणाम का जिहड़ा चर्चा है वो करनी है, प्रश्न दृष्टिकोण तो करनी है, एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्नों का जिहड़ा तरीका है उस प्रकार तो करनी है। तो इत्थे आप एक होर प्रश्न देखने की कोशिश करांगे जिहड़ा कि विशेषण तो ही संबंधित है। नेक, सच्चा, चंगा, झूठा, बुरा, खट्टा, मिठा, ये किस प्रकार के विशेषण ने? तो साथियों ये सारे जिहड़े विशेषण ने एक गुणवाचक विशेषण ने, यानी ये किसी भी चीज़ का गुण दस रहे ने। नेक, ठीक है, नेक मुंडा हमेशा ही तरक्की करता है, ठीक है। सच्चा, ठीक है, सच्चा इंसान किते भी धोखा नहीं खाता। चंगा, चंगा मुंडा है जिहड़ा वो हमेशा तरक्की करेगा। झूठा, झूठा बंदा कदे अगे नहीं वध सकता। इस तरीके नाल कोई वाक भी बन सकते हैं। तो ये जिहड़े शब्द ने ये उस चीज़ के गुण ने। मिठा होना गुण है, एक गुण हुंदा साथियों, एक अवगुण हुंदा। तो गुणा दे ये दोनों चीज़ां ने जिहड़ियां इस दे तौर के अंदर पढ़ियां जांदियां ने विशेषण के अंदर, जिन्होंने आपां सेंटेंस यानी वाक के अंदर देख के हल कर सकते हैं। फिर इस तो बाद अगला अपने को प्रश्न है जिहदा उच्चा, नीवा, मोटा, पतला, लंबा, मधरा, खुला, भीड़ा, ये किस प्रकार के विशेषण ने? तो ये भी साथियों किस प्रकार के ने? गुणवाचक विशेषण ने। गुणवाचक के अंदर की आकार ते विस्तार की अवस्था के अंदर ने ये या तो आकार दस रहे ने तो या फिर आकार का जो भी है विस्तार है जिहड़ा उसनूं ये क्लीयर कर रहे हैं। तो इस आधार पर सारे शब्द ने जिहड़े ये गुणवाचक विशेषण के तौर पर आए हैं।
फिर अगे प्रश्न एक हो रहा है, नरम, गरम, रोगी, नौजवान, बुढ़ा, ये किस प्रकार के विशेषण ने? तो साथियों ये भी गुणवाचक विशेषण ने, ये दशा दस रहे ने भी उसकी हालत कैसी है। ठीक है, नरम, गरम यानी ये दशा दसन वाले ने, दशा की अवस्था दसन वाले शब्द ने, तो ये सारे के सारे विशेषण ने। सीधा जिहा हिसाब है साथियों, जदों किसी चीज़ की विशेषता दसी जा रही हो, उसकी खासियत, उसकी खूबी दसी जा रही हो, उस खूबी दसन वाला प्रॉपर जो शब्द होएगा वो विशेषण होएगा। तो जेकर वो गुणा तो संबंधित होए तो गुणवाचक, गिणती तो संबंधित होए तो गिणतीवाचक, तो जेकर नाप तोल तो संबंधित होए तो मिणतीवाचक, तो ऐसे तरीके नाल जेकर वो परिणाम होंदे होए विशेषता दस रहा होए तो परिणामी विशेषण। फिर इस तो बाद साथियों आप एक अगला होर देखांगे पॉइंट है जो अपने को 48 नंबर के अंदर है साथियों कि गुणवाचक विशेषण दियां कितनियां अवस्थावां हन। अवस्था पूछी गई है तो साथियों गुणवाचक विशेषण है जिहड़ियां उहदियां 3 अवस्थावां ने। ये प्रश्न नोट करने वाला है किहड़ियां किहड़ियां ने? सधारण अवस्था है, अधिकतर अवस्था है, तो अधिकतम। सधारण दा जिहड़ी कि सब दे लई बराबर हुंदी है अधिकतर, यानी जिहड़ा एक ग्रुप के अंदर जो टॉप जिन्हों असीं कह दिंदे आ, ते अधिकतम जिहड़ा सब दे अंदर अवल होवे उसनूं आपां अधिकतम के नां तो जाणदे आ। हुण इन्हां नूं आपां एग्जाम्पल दे राहीं भी इस चीज़ नूं समझण दी कोशिश करांगे। ये सधारण अवस्था वाले विशेषण ने, ये अधिकतर अवस्था वाले विशेषण ने, ते अधिकतम अवस्था वाले ने। सधारण यानी चंगा, मोटा, नवीन, ये तो हो गए सधारण। हुण जदों इन्हां नूं अधिकतर, चंगेरा यानी चंगा, यानी ये एक बच्चे के लिए है, ये नहीं पता चलिया कि वह 5 जणियां चों चंगा है कि 10 जने चों चंगा है कि पिंड चों चंगा है कि दुनिया चों चंगा है। ठीक है, हुण इत्थे वो एक क्लीयर हो गया कि वह चंगा है। पर जो अधिकतर अवस्था के अंदर आप चंगेरा शब्द बोलांगे तो चंगेरा का मतलब कि चंगियां की श्रेणी के अंदरों वो अवल है। पर जो आप सब तो चंगा कह दिए तो वह अधिकतम अवस्था है, यानी वो उस दर्जे के अंदर सब तो टॉप ऊपर आ रहा है। ठीक है, ये ठीक ऐसे तरीके नाल ये अवस्था नूं दूजे तरीके नाल जेकर असीं समझण दी कोशिश करिए तो ये वो क्लास हो गई कि एक तो वो हो गया बच्चा जिसने फर्स्ट डिवीजन ली है, एक वो हो गया जिसने क्लास नूं टॉप किया है, एक वो हो गया जिसने सब नूं टॉप किया है। तो वो 3 अवस्था नूं आपां इस तरीके नाल भी एक माइंड दे अंदर असीं याद रख सकते हाँ, समझ सकते हाँ। मोटा सधारण अवस्था है, मोटेरा अधिकतर अवस्था है, सब तो मोटा ये अधिकतम अवस्था है। नवीन ये सधारण अवस्था है, नवीनतर ये अधिकतर अवस्था है, तो अधिकतम अवस्था के अंदर आ जाता सब तो नवीन, यानी सब तो जिहड़ा नवा है उन्होंने आप अधिकतम अवस्था के अंदर देखते हैं। तो ये सी साथियों 3 गुणवाचक विशेषण दीआं अवस्थावां। फिर इस तो बाद जो अपने को नैक्सट क्वेश्चन आ जाता साथियों 49 नंबर है, इसनों देखने की कोशिश करांगे। ਜਿਹੜੇ शब्द नाम ਜਾਂ प्रनाम शब्द की गिणती ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ? तो साथियों उसनों आप संख्यावाचक विशेषण आखते हाँ। संख्या आ गई ना, गिणती का ज्ञान कराते हैं तो यह संख्या आ गई, तो इसनों आप संख्यावाचक विशेषण आखांगे। हुण इत्थे एक होर इस चीज़ नूं क्लीयर करने लई चीज़ दित्ती हुई है, 5, 10, दुगना, चौड़ा, चौड़ा नहीं है साथियों, चौथा है क्योंकि गिणती की गल चल रही है। 5, 10, दुगना, चौथा, थोड़े, ये भी गिणती के अंदर आ जाती है। बहुत या बहुत, ये सारे गिणती के अंदर आ जाते हैं। किस प्रकार के शब्द हैं? तो ये साथियों संख्यावाचक विशेषण ने। फिर होर इत्थे आ गया कि 1.5, 2.5, अद्धा, पौना, किस प्रकार के शब्द ने? तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण ने। इस प्रकार के अगर क्वेश्चन की असीं प्रैक्टिस करांगे, पॉइंट वाइज उसनूं समझण की कोशिश करांगे, तो एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला हर प्रश्न है जिहड़ा साडी पहुँच के अंदर होएगा, वो साडी पहुँच तो बाहर नहीं होएगा। फिर इस तो बाद एक होर आपां देखने की कोशिश करांगे, एक, अद्धा, थोड़े बहुते, कई, किस प्रकार के शब्द ने? ये अनिश्चित है। एक निश्चित हुंदा है, एक अनिश्चित हुंदा है। निश्चित तो वो जिहड़ा फिक्स हो गया कि ये 5 ही है, पर जो उसका अंदाजा उसके आस पास का होवे, कन्फर्म ना होवे कि ये पूरा 5 है, वध घट का अंदाजा भी होवे, तो उसनूं आपां अनिश्चित के अंदर रखते हाँ। तो ये जिहड़े एक अद्धा यानी पता नहीं भी एक है या अद्धा है, तो उन्होंने आप अनिश्चित कहांगे। जे उत्थे एक आ जाता या फिर इकल्ला अद्धा आ जाता तो वह फिर निश्चित हो जाता।
ਇਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨੇ ਸਾਥੀਓ? ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਮਿਣਤੀ, ਤੋਲ, ਮਾਪ ਦਾ ਬੋਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਥੀਓ ਪਰਿਮਾਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। यानी ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ नाप ਤੋਲ माप का पता चलता है, नाप ਤੋਲ ਤੇ माप यानी मिणती ਜਿਹੜੀ कि तरल चीज़ां मिलती हैं जिवें तेल, दुध, घ्यो, ਤੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ठोस चीज़ां, माप ਜਿਹੜੀ दूरी ਆਪਾਂ नापते हाँ कि 5 किलोमीटर, 100 मीटर, 10 सेंटीमीटर, और इस आधार पर ये ਜਿਹੜੇ शब्द होंगे ने उन्हां नूं आपां परिमाणवाचक विशेषण आखते हाँ। फिर साथियों इस तो बाद आप कुछ शब्द इत्थे क्वेश्चन होर हल करने की कोशिश करांगे। इस तो बाद साथियों आप देखांगे इस दे अंदर एक होर प्रश्न देखने की कोशिश करांगे। आप थोड़ा, बहुत, सारा, काफ़ी, चोखा, कुछ, वध किस प्रकार के विशेषण हैं? तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण ने। उस प्रकार का इत्थे क्वेश्चन वाइज पूछा गया है। फिर अगे है नाम या प्रनाम नाल आने वाले शब्द जो इशारे या संकेत नाल उसनूं आम तो खास बनावे की अखवाउंदे ने उन्हां नूं निश्चयवाचक विशेषण आपां आखदे हां। फिर उस तो बाद आपां 3 क्वेश्चन होर देखने की कोशिश करांगे। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर देखांगे। ये घर साडा है वाक विच विशेषण का प्रकार है, तो ये निश्चय कन्फर्म हो रहा है, यानी ए कन्फर्म हो रहा है, तो ये निश्चयवाचक विशेषण हो गया। 59 नंबर क्वेश्चन है तुहाडे कपड़े चंगे सिउंते हुए हैं, वाक विच तुहाडे शब्द किस वजों आया है? तो साथियों ये परिणामी विशेषण के तौर पर आया है। तुहाडे जिहड़ा शब्द है ये परिणाम है, ठीक है, ये दी मात्रा ला के यह विशेषता प्रगट कर रहा है, ठीक है। यानी कपड़े की विशेषता नूं जिहड़े तौर पर जिहड़ा परिणामी शब्द वरत्या गया है वह परिणामी विशेषण अखवाउंदा है। फिर अगे 60 नंबर आ गया। वो परिणामी शब्द जो नाम शब्द नाल आके विशेषण का काम करे वो की अखवाउंदा है, उसनूं परिणामी विशेषण। ये गल आपां उपर कर चुके हाँ। तो ये सी साथियों अज इस वीडियो के अंदर आपां विशेषण देखिया। अगले दे अंदर आपां क्रिया देखांगे। ऐसे तरीके नाल लगातार चैनल के उपर जुड़े रहो तो मैं आपके लिए हर रोज़ रीड तो संबंधित कोई ना कोई वीडियो लेके जरूर हाजिर होता रहांगा। जिवें कि आप सब के लिए मेरी मैक्सीमम कोशिश है कि आपकी प्रैक्टिस भी क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग करवाई जाए। इस तो पहले चैनल के उपर मैं पूरा सिलेबस अपलोड लगभग कर चुकिया, जो पॉइंट बाकी ने उन्होंने अगले कुछ दिनों के अंदर कोशिश है कि वो अपलोड किए जान, आपनूं मुहैया करवाए जान ते आप तैयारी कर सको। इस दे नाल नाल मैं साथियों एक होर गुजारिश करूँगा मेरे चैनल ते पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट के लिए कि वो चैनल के नाल नाल अपनी बुक की मदद भी लैन। वो बुक कोई जरूरी नहीं है कि किसी एक नाम तो होवे, ये टॉपिक तुहानूं उस बुक के अंदर मिलने चाहिए। वो चाहे बुक 10वीं की होवे, चाहे ग्रैजुएशन की होवे, चाहे PG की होवे, चाहे वो कंपीटीशन की होवे, तुहानूं ये टॉपिक मिलने चाहिए। तुसीं बुक के नाम ते ना जाके बुक सिलेबस के टॉपिक वाइज उसनूं देखो, तो उस टॉपिक वाइज जो सिलेबस तुसीं तैयार करोगे तो तुहानूं प्रॉपर किसी एक बुक के पीछे पैन की कोई जरूरत नहीं है। पेडोलॉजी तो संबंधित चैनल के उपर मैं सारे वीडियोज़ अवेलेबल करवा रखे ने। जिवें कोई नोटिफिकेशन जारी होंदा है, अगर उसके अंदर सिलेबस के अंदर कोई चीज़ आएगा तो उसके अकॉर्डिंग मैं सारा सिलेबस तैयार करवा के इस चैनल के उपर तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए मेरी कोशिश होएगी कि उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ घट्टो घट प्रिंट के अंदर आपको ये सामग्री मिल सके। ऐसी मेरी कोशिश है। तो ऐसे तरीके नाल चैनल ते जुड़े रहना, तो हौसला अफजाई देंदे रहना, तो मैं आपके लिए सारा सिलेबस लैके लगातार हाजिर होंदा रहांगा। धन्यवाद साथियों।